Moving on to our next panel discussion, we have already touched upon the use of technology in managing customers, and in the next panel, we'll discuss this in greater detail. So let's talk about the use of technology in salon management with our experts on the panel for Tech Talk, Customer Relationship and Data Management. My esteemed panelists for this session include Mr. Sachin Kamath, Senior Director Zenoti, who is an industry thought leader and regular contributor in industry forums, playing a significant role in the scale-up of Enrich as director on the management board. He was the custodian of the brand, contributed to the customer experience, the employee experience, education, and technology adoption. While there are many who start as stylists and go into managed salons, Sachin did this journey the other way around, enrolling in the Enrich Academy in 2019 and formally studying hairdressing. Currently, as the Senior Director of Zenoti, a software which he is familiar with for over a decade as a user, he is working towards applying his understanding of the domain and software to enabling prospects and customers to use Zenoti to drive growth in their business. Can we please have Mr. Sachin Kamath on the stage? My next speaker is Mr. Kapil Sharma, a successful artist entrepreneur whose perseverance and determination have led him to create an award-winning brand called Kapil Salon and Academy. He's a professional from Vidal Sassoon, UK. Where he has done his hair and makeup course from the London College of Fashion. He holds a record of doing 140 haircuts in one day. He's a thorough gentleman with a clear goal and persistence in providing an amazing experience to all his internal and external guests. A day maker in true sense, he is a creative hairstylist, a profound speaker, and so on. And he is an inspiration to a lot of young and aspiring hairstylists who want to make their careers in this industry. Kapil, can we please have you on stage? Thank you so much for joining us. Can we have a round of applause for our speakers? And my final speaker for this panel is Mr. Mukul Pawar, the director of Lookwell Salons Private Limited. Mukul took over operations in the year 2014 when Lookwell had one salon, and today he has expanded it to 25, one training academy with 400 plus trained professionals and a corporate team. Prior to joining the salon industry, Mukul completed his bachelor's degree in computer engineering and was working with SAP in Pune. Moving over from the IT industry to the salon industry, he realized the importance of technical education and underwent a 6-month hairdressing course from L'Oreal Academy. His vision is to continuously enable customers, staff, brand partners, and franchisees with technical and operational expertise that Lookwell has gained over in the past 28 years. Can we have a round of applause for our panel? And I will be joining you there, and we'll take this conversation further. Thank you so much. And since all of you are hairdressers, I'm tempted now to change the topic. Right. Okay, so here we are talking about technology. The two aspects that I would really like you to speak on is customer engagement and what was the second one? Sorry. Data management. Sorry. So these are the two main things that are really challenging for the salons, and please feel free to speak in Hindi whenever you want to exemplify. So beginning with you, Kapil, how are you using technology for client servicing and relationship management? So have a happy afternoon, everyone. And I thank Professional Beauty team to organize these kind of events where we can share and exchange ideas from each other. So thank you so much for that. And thank you for providing listening. As far as we are concerned, how we are using technology to enhance client experience, that's your question, right? So I think when it comes to client experience, personalization is very, very important. And technology takes care of it completely. So when I started, I remember that I used to remember जो मेरे पहले 100, 200, 500, 1000 गेस्ट थे, 100, 200, 300 स्टूडेंट थे, सबका नाम मुझे याद था. तो अब 2000 लोगों तक मुझे सबका नाम याद था. और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि एक यूएसपी थी, क्योंकि लोगों को नाम याद नहीं रहता है.
बट आई थिंक ये जो यूएसपी है ये अभी सबके लिए अवेलेबल है, बिकॉज आप हर एक चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो जो गेस्ट एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सकती है, कस्टमाइज कर सकती है. एंड आई थिंक ये गेस्ट एक्सपीरियंस खाली इस बात से डिसाइड नहीं होता, ये तो अभी बहुत नॉर्मल हो गया है कि कॉफ़ी में शुगर कितनी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, बट ऑल्सो इन द सेंस आप जो असेस नहीं कर पाते हो, डेटा आपको बताता है कि आपकी गेस्ट शायद ये सर्विस चाह रही हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो. तो इट गोज इन देयर साइकी विदाउट गेटिंग इनटू देयर साइकी. सो आई थिंक ये एक तरीका है जहां हम कस्टमाइज कर रहे हैं उनके बिहेवियर पैटर्न को और आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि क्या मिस हो रहा है हमारे से, जो एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहते हुए शायद हम नहीं कर पा रहे. Yes, Mukul. Hello. Yeah, good afternoon, everyone. So, how the technology will be used to manage data. So, data management is something, a very big thing. और डेटा को मैनेज करके बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल थिंग इज वी नीड टू मेक अ डिसीजन विच शुड बी डेटा ड्रिवन. तो डिसीजन बनाने के लिए डेटा को रीड करना बहुत ज़रूरी है. हर अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, ओनर्स को अलग अलग तरीके का डेटा लगता है. तो वो डेटा जैसे कि कस्टमर डेटा हो गया, देन यू हैव अ डेटा ऑफ इन्वेंट्री, स्टाफ परफॉर्मेंस डेटा हो गया. तो ये हर लोगों को अलग अलग डेटा को रीड करने को आना चाहिए. सो देर आर लॉट ऑफ नंबर्स ऑन एक्सेल्स. सो कभी कभी वो एक्सेल्स देख के काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है. सो वी नीड समथिंग, अ सिंप्लीफाइड वे ऑफ डैशबोर्ड्स जो डेटा को सिंप्लीफाइड करे. जितनी हेरारकी ऊपर होगी तो थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड. जितने नीचे लोग होंगे तो उनको थोड़ा माइक्रो मैनेजमेंट डेटा की रिक्वायर्ड होगी. तो वी नीड अ सर्टन सॉफ्टवेयर विच कैन एक्जैक्टली ड्राइव ऑल द डेटा और उस डेटा से डिसीजन बना सकते हैं विच कैन रियली इम्प्रूव salon profitability also. Are you saying this because you have a chain, or you think that even a standalone single door salon requires a software? Initially, when my mom had one salon, she used to write everything on book and pen paper. Then the era came of a software जो ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, नॉन क्लाउड बेस्ड. फिर धीरे धीरे लॉट ऑफ कंपनीज केम, लाइक वी वेर वन ऑफ द यूजर ऑफ Zenoti during that time. So we implemented long time ago. So we have implemented Zenoti for all 25 salons and we manage everything centralized. तो बहुत required है. Okay, so it's the need of the hour. basically. Yes, yes, absolutely, absolutely. Yes, sir. मैं बहुत आई एम सिटिंग इन अ वेरी हैप्पी सिचुएशन बिकॉज आई वर्क फॉर अ टेक्नोलॉजी कंपनी एंड बोथ दीज जेंटलमैन हैपन टू आल्सो वर्क विद अस, राइट. कमिंग टू हम जिसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं या डेटा मैनेजमेंट बोलते हैं, ये शब्द बहुत बड़े बड़े हैं. बट बहुत सिंपल तरीके से अगर हम कहें तो हर एक इंसान को, फिर हो आप हो, हम हो या हमारे कस्टमर्स हो, उनको ये लगता है कि कोई मुझे देखे, मुझे जाने, मेरी ज़रूरत को समझे और मैं जिस काम के लिए आज यहाँ आया हूँ वो मुझे अच्छी तरीके से करके दे, राइट. यही चीज़, इसी को हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहेंगे. और जो भी हम पर्दे के पीछे करें, कितने भी बड़े शब्दों में उसको हम बात करें, डेटा इज द न्यू गोल्ड, डेटा, CRM, फलाना ढिमकाना, आखिरी ये इतना ही काम करता है कि उस कस्टमर को कम से कम समय में क्या करना है वो समझ लीजिए एंड यू डिलीवर दैट टू देम, राइट. तो आज की तारीख में क्योंकि 2000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं, या एक कस्टमर जब आपके सामने आता है तो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लेके आता है. मैंने ये लुक देखा है, मैंने ये कलर देखा है, मुझे ये करना है, वो करना है, 10 दिन बाद मुझे यहाँ जाना है, फेस्टिवल आ रही है, क्या करें, कैसे करें.
manage it in a certain cost time. इतना सारा डेटा उनके दिमाग में भी है, राइट? तो अभी टेक्नोलॉजी का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है कि किस तरीके से आपकी जो कैपेबिलिटी है और कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको आसान तरीके से समझ के उससे एक ये फैसला किया जाए कि आज हम इस कस्टमर के लिए क्या करेंगे. तो उसके लिए उनकी क्या जरूरतें हैं, उनका पिछला जो भी सर्विसेज हुए हैं उसका क्या डेटा था, कलर किया था तो कौन सा था, कौन सी फ्रीक्वेंसी में आए थे, किस टेक्नीशियन के साथ उन्होंने सर्विस की थी, या अगर नए हैं तो उनसे बात करके ये सब समझा जाए. अगर ये आज मैंने समझा, आज मैं स्टाइलिस्ट हूं, अगली बार आए तो ये स्टाइलिस्ट हो, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं उसको रखना पड़ेगा ताकि जब इनके पास आए तो उनको वो सब डेटा दिखाई दे. सो व्हेन कनिष्का कम्स नेक्स्ट टाइम, उसको एक भी चीज रिपीट ना करनी पड़े. वो जैसे आए, वी शुड से हाय कनिष्का मैम, हाउ आर यू टुडे. शी विल फील गुड, राइट? कि उनको एक भी चीज रिपीट ना करनी पड़े. आप और हम आज बैंक में फोन करते हैं, हर जगह करते हैं, एक जगह काम नहीं होता है, 4 लोगों से बात करना पड़ता है, जीरो से वही कहानी फिर से कहनी पड़ती है. वेरी इरिटेटिंग, राइट? बट दिस इज टेक्नोलॉजी. बहुत सिंपल तरीके से ये सब विदाउट फ्रिक्शन हो सकता है. Right. Does that help? Yes, definitely. Kapil, coming to you, are there any trends in technology that you have seen, observed in recent times, or you are practicing in your salon now? कुछ नया आया है जो कुछ आप ट्राई कर रहे हो? Any new software, any new app? जिनोटी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हुए हैं और आप पूछ रहे हो कि हम कोई नया सॉफ्टवेयर ट्राई कर रहे हैं. ओके, एनीवेज, बहुत सारे ट्रेंड हैं जो देखने को मिल रहे हैं, और ट्रेंड पूरी सोसाइटी में है और सैलून्स में भी है. तो आज से कुछ साल पहले मुझे ध्यान है कि ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस में जब बात हो रही थी, और बात हो रही थी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की, और मेरा स्टांस उस समय ये था कि ये आने वाले फ्यूचर में बहुत उपयोगी होगा, और बहुत सारी नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने उस समय इसको यूज़ में लेना भी शुरू किया था. लेकिन मेरा ये मानना था तब कि व्हाट्सएप इज प्रेफरेबल मीडियम. इंडियन पीपल स्टिल वांट टू टॉक. अभी आज इस मूवमेंट में मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि 60% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, they do not want to interact at all. Not even calling, not even WhatsApp, they just want to book it. So वो एक बहुत बिगेस्ट ट्रेंड है. दूसरा ट्रेंड जो है, एक टाइम था जब हम गूगल रिव्यूज़ के बारे में और गूगल एज ए सर्च इंजन के बारे में बहुत बुलिश थे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी हैं. लेकिन जो नई जनरेशन है, वो कन्वेंशनल जो एक सर्च इंजन बना है जिसका पर्पज़ ही है कि सर्च को आसान बनाया जाए, वो इंस्टाग्राम से सर्च करते हैं. तो दो चेंज हैं. एक, जो नई जनरेशन है वो इंस्टाग्राम को यूज़ में ले रही है बिहाइंड द सीन, रील बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए. बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो कंज्यूमर है अभी, वो गूगल से ज़्यादा जो नया कंज्यूमर आएगा वो इंस्टाग्राम पे सर्च करता है, जो मीडियम इसके लिए नहीं बना है. तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव. एक ट्रेंड की और बात कर लेता हूँ, Yes, if you allow. please. Yes. एंड आई थिंक कि ये जो टेक्नोलॉजी के थ्रू सब चीज़ें ड्राइव हो रही है, तो ये गेस्ट की एक्सपेक्टेशन मिनिमम बन गई है. जो एक टाइम पे वॉव फैक्टर हुआ करता था कि अरे इसको कैसे सब याद है, ये कैसे मालूम कर लेते हैं, अभी इट इज़ ए क्राइम. मतलब दे एक्सपेक्ट कि व्हाई आई नीड टू से इट अगेन विच ही जस्ट मेंशन्ड. तो ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत सिंपल ट्रेंड चेंज हो रहा है. सो दैट्स व्हाट आई कैन से. Can I just quickly Yes. add? Yes, sir. आई थिंक जो कपिल कह रहा है ना कि ट्रेंड जो है वो सैलून इंडस्ट्री में नहीं है, दुनिया में जो चीजें हो रही हैं, सैलून इंडस्ट्री और हमारे कस्टमर उसी दुनिया के भाग हैं, और इसलिए हमको वो ट्रेंड समझ के उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा. इन्होंने कहा कि
कस्टमर को आज बोलने की नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग, उनको बात नहीं करनी है। आप सोचिए ऐसा क्यों है? आप फोन पे कोई चीज एसएमएस करने जाते हो तो वहां पर ऑटो करेक्ट है, आपकी गलती होती है तो अपने आप सुधार देता है। आप नेटफ्लिक्स पे एक मूवी खत्म करो, साथ में दूसरा आता है, बिकॉज यू लाइक दिस वी थिंक यू विल लाइक दिस। नेटफ्लिक्स पूछता है घर पे कौन देख रहा है, घर में 5 लोग है, वो आज सचिन देख रहा है तो उसकी जरूरत की चीजें अपने आप से दिखाता है। आप यूट्यूब पे जाइए, एक वीडियो देखिए, 10 देखिए, फिर अपने आप जो आपको अच्छा लगता है उसके बाद लाइन पे आपको आने मिलता है। तो ये जो कस्टमर को ऐसे लगता है कि आप समझ लो मुझे क्या चाहिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सब पूरी दुनिया का ट्रेंड है, राइट? विच इज वाई हम लोग अभी अपने कस्टमर्स के लिए इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए पूरा कस्टमर इंफॉर्मेशन एक जगह पर रख के, ताकि जब स्टाइलिस्ट काम करे तो उसको पता चले, सभी इंफॉर्मेशन उसके पास हो, उसको पूछना नहीं पड़े कि कितने हफ्ते पहले आपने कलर किया था, और आपने अगर कलर किया था तो कौन सा शेड इस्तेमाल हुआ था। ये सभी चीजें ऑटोमेटिकली जब जरूरत हो तब उनको अपने आप से वो मिलता है, राइट? एक तरीके से अगर हम देखें, हम इसको अगर टेक्नोलॉजी कहेंगे ना, आज शाम को फॉर एग्जांपल 5:30 बजे एक और सेशन है जहां पर हम काफी अलग चीजों के साथ अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्राई एंड अटेंड दैट, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये जितनी भी चीजें हम यहाँ कह रहे हैं ना, ये सब चीजें उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हो रही है। सिर्फ बात यह है कि हमको ये पता नहीं है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वही चीज, बट सी हाउ हेल्पफुल इट इज बिकमिंग टू अस। यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट इन योर फोन। Right. Kapil, I really appreciate you bringing this topic up front, that whatever is happening around us is what the salon industry also has to pick up. ये मैंने notice किया जब recently Uber was in news because of some maps thing, and customers started responding that we don't want to talk to the drivers. They should just arrive at our doorstep, figure out our location and just be there. We don't have to tell them कि यहाँ ये turn लो, ये दुकान के बाहर आओ. They don't want that interaction, and you have pointed out that the salon industry customer is also expecting the same thing. So thank you for that, and thank you sir for adding more to it. Mukul, coming to you, what are the trends that you have observed in technology that's happening around us? So same as Kapil ji also said कि people don't want to talk more. So उसके base पे there are a lot of trends which are following up now. The online booking with various apps, website, Instagram, Google with Reserve. And the second thing is contactless payments. We have started in our salon online appointment, and we have raised to 3% more in appointments than earlier in online appointments. And we have also started receiving the contactless payment for memberships, products and all everything. Later on, we have also thinking to implement something like AI, where the customer, before the booking the services, अगर customer ने अगर एक facial select किया, तो facial select करने के बाद he can see the short video of what he's gonna expect. That's interesting. या मतलब जैसे कि हम जोमेटो में ऑर्डर करते हैं तो हम उसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं जहाँ पे फोटो होता है, तो थोड़ा सा फेथ और बिलीव और आ जाता है। तो वही चीज़ अगर हम इम्प्लीमेंट करें ज़ेनो टीम में बिफोर एवरी सर्विस, तो कस्टमर कैन सी कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है मेरा फाइनल प्रोडक्ट, तो कस्टमर कैन प्लान टू बुक इट ओवर देयर. दैट इज़ वन. एंड द सेकेंड थिंग, marketing. Right. So we can definitely do a segmented marketing. This is also one of the trend happening in salon. Yeah. Right. So when you use softwares like Zenoti, you get a lot of data. You start storing data, you collect data, and you also analyze it. But on the shop floor, ये कैसे ट्रांसलेट होता है? आप इसको एक्चुअली यूज में कैसे लाते हैं जो सारा डेटा कलेक्ट होता है? Exactly. जब तक डेटा यूज ही नहीं करेंगे वो डेटा का कोई काम नहीं है ही नहीं. सो काफ़ी पैरामीटर्स है.
समझो अगर मुझे एम्प्लॉय रिलेटेड देखना है तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज KPI रिपोर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. हर एम्प्लॉय ने कितने क्लाइंट्स किए हैं, उसने बेसिक सर्विसेज कितने किए हैं. बेसिक सर्विसेज लाइक कस्टमर सैलून के अंदर आता है तो बेसिक सर्विसेज आर आईब्रोज, वैक्स फॉर इन ब्यूटी एंड इन हेयर इज हेयर कट्स. सो हेयर कट के लिए तो क्लाइंट तो आने ही आने हैं. उससे हम कन्वर्जन कितना हेयर रिचुअल्स में ला रहे हैं, ट्रीटमेंट्स में ला रहे हैं, दैट इज़ वेयर इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि कन्वर्जन कितना कर रहा है. इफ़ मेरे पास कोई पुराना एम्प्लॉय है जिसके रिक्वेस्टेड कस्टमर्स है, स्टिल ही इज़ लो इन कन्वर्जन, एंड माई अ न्यू गाय हु हैज़ जस्ट जॉइंड, उसको कम क्लाइंट्स मिलेंगे बिकॉज उसके रिक्वेस्टेड नहीं है, बट वो कन्वर्जन ज़्यादा कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि with the figures. So these are one of the factors. Then you have lot of dashboards where you can see in other field also. Yes, sir. Abhi, my friend Mukul here, he is very, very well educated. He understands numbers. ये डैशबोर्ड और एक्सेल शीट देख के एनालिसिस करके डेटा को समझ सकते हैं. बट आई विल टेल यू व्हाट इज कमिंग अप. व्हाट इज कमिंग अप इज, आज टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. मतलब आप और हम जैसा बात करते हैं वो कंप्यूटर जी समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी समझ सकती है. इसीलिए डैशबोर्ड की जरूरत नहीं है, एक्सेल शीट की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ लिख दीजिए कि हम अक्टूबर 1 पे हैं, अगर मुझे गए अक्टूबर के हिसाब से और गए महीने के हिसाब से मुझे अगर करना है तो इस महीने मेरे रिपीट कस्टमर्स को अंदाजे रखते हुए कहां तक मेरा रेवेन्यू पहुंचेगा. तो सिस्टम आपको ये सभी डेटा कैलकुलेट करके बता सकती है कि कहां तक रेवेन्यू पहुंचेगा. फिर आप पूछिए मेरा टारगेट अगर 40 लाख है और वैसे करके मुझे 30 तक मैं पहुंच पाऊंगा तो मुझे एफर्ट कितने के लिए करना पड़ेगा? एडिशनल 10 लाख रुपए के लिए. अभी यही चीज पहले समझने के लिए हमको कोई एनालिस्ट की जरूरत पड़ती थी. अभी द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव टुडे, okay, which is running in beta right now when we talk, there are customers already trying it in my company. वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके सैलून मैनेजर जो हैं वो सिंपल इंग्लिश में पूछ सकते हैं कि मुझे प्लीज बता दीजिए कि अब कलर पे सबसे बेस्ट ऑफर क्या होना चाहिए. तो वो डेटा कलर का एनालाइज करके आपको 2-3 ऑप्शन बता देगा. So it's like a prompt that you give to ChatGPT, something like that? Not to ChatGPT. ChatGPT is across, right? Yeah. This is a engine which is trained on your data. I got that, but it's almost like a prompt when you are asking the questions. It's how you would type a prompt in ChatGPT. You ask your questions. Exactly. जैसे आप ChatGPT पे, for example, ChatGPT पे prompt ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल चीज है. आज हम सर्च करते हैं ना रेस्टोरेंट्स नियर मी, और आ जाता है कि आपके अगल बगल में कितने रेस्टोरेंट है. फिर आप देखते हो कि उसमें सबसे बढ़िया रेटिंग कौन सा है, 4 के ऊपर होगा तो मैं जाऊंगा. ये सभी चीज अभी अपने बिजनेस में आ रही है, एंड इट इज ट्रेन्ड ऑन द डेटा ऑफ योर salon, right, with your customers and your numbers. Got it. So for Also- your internal purposes, the data that you have accumulated, it will give you answers so that you can come up with Basically वो जो कंप्यूटर है वो आपके इंटरनल डेटा का पोर्शन सिलेबस भी समझ के आया है जवाब देने. Can I add up? Yes. सो डेटा को रीड करने का सब लोगों का अपना अपना तरीका है रीड करने का. कपिल सर का अलग होगा, सचिन सर का अलग होगा, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा. तो ये समझो हमें डेटा दिया है तो कैसे रिजल्ट लाना है. तो आई गेस ये बहुत बढ़िया फीचर आप लेके आ रहे हो, जिससे अगर मेरे पास कलर का बिजनेस कम है और मैं सपोज लग्जरी सैलून हूँ, तो लग्जरी सैलून के लिए और मेरा प्राइस पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैंने अगर क्वेश्चन पूछा कि मुझे हेयर कलर का ऑफर निकालना है, तो प्रोबेबली वो अच्छा प्राइस लेके और कुछ अट्रैक्टिव लेके जहाँ पे मेरे लग्जरी क्लाइंट को अट्रैक्ट करे, वैसा वो कस्टमाइज ऑफर देगा. Right. फॉर सपोज योर सैलून इज लाइक अ मास प्रीमियम, तो फिर आपको उस तरीके का ऑफर देगा. Okay. और I give you एक बहुत
सिंपल एग्जांपल देता हूं जो सबको समझ आएगा, राइट? समझो मुझे अगले हफ्ते मुझे समझ लीजिए 2 लाख रुपया रेवेन्यू चाहिए और मैं सोच रहा हूं कि मुझे कलर में कुछ करना चाहिए क्योंकि फेस्टिवल सीजन आया है, या 5 लाख रुपया मुझे प्लान करना है। तो मैं अपने डेटा सेगमेंटेशन जो ये कह रहे थे, मैं पता कर सकता हूं कि मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उसमें कितने लोग हैं जिन्होंने 4 महीने पहले कलर किया था और जो अभी इस वक्त कलर करने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो बताएगा आपके पास ऐसे 411 कस्टमर हैं, ठीक है? उसमें से मेरे 3 किलोमीटर के दायरे में कितने हैं, अगर आपके पास डेटा है तो फिर वो ये बता देगा। बोले उसमें से कितने लोग मंडे टू थर्सडे आते हैं और कितने लोग सिर्फ शनिवार इतवार को आते हैं क्योंकि वो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो डेटा मिलेगा। तो फिर मैं ये करके प्लान कर सकता हूं कि सिर्फ उन 411 में से कम करके उन 350 लोगों को ये ऑफर भेजा जाए जो इनके पास जाए, वो बोले डियर कपिल हियर इज एन ऑफर फॉर यू, डियर कनिष्का दिस इज एन ऑफर फॉर यू, एंड डियर मुकुल दिस इज एन ऑफर फॉर यू। और इन्होंने क्या कहा कि कस्टमर को आजकल पर्सनलाइज्ड चीजें पसंद है, कस्टमाइज्ड चीजें पसंद है। तो उनको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इन महाशय को पता है कि मेरा कलर को 3 महीने हो गए, फेस्टिवल सीजन आ रही है और इस तरीके के हाइलाइट्स हो सकते हैं। Right. Thank you, दैट इज sir. द पावर ऑफ इट। Yes, yes, Kapil. तो अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, टेक्नोलॉजी है, डेटा है, तो उसको यूज़ में कैसे लेना है, तो सैलून ओनर या टेक्निकल टीम मेंबर 2-3 चीज़ें उनकी प्रायोरिटी होती है। एक प्रायोरिटी ये होती है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आएगी, दूसरी ये होती है कि मेरे गेस्ट का एक्सपीरियंस कैसे अच्छा रहेगा। ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इसमें प्रायोरिटी ऊपर नीचे हो सकती है। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी की आप बात करते हो तो ये है कि आपका टोटल कलेक्शन या सेल्स या रेवेन्यू कैसे ज़्यादा होगा, आपका कंजम्पशन कैसे कंट्रोल रहेगा, उसकी फोरकास्टिंग कैसे राइट होगी, और आपके लोगों की परफॉर्मेंस क्या है। विद हेल्प ऑफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी यू कैन स्मूथली सी ऑल दोज थिंग्स क्लियरली। और जैसा कि मुकुल ने बोला, हर एक जो ड्राइवर है किसी भी सैलून का, उसको डेटा अलग तरीके से देखना समझ में आता है। तो वेदर इट इज विजुअल्स, ग्राफ्स, ट्रेंड्स और नंबर्स, तो डिफरेंट पीपल, बट आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी ट्रेंड है कि डेटा आपको लाके वैसे दिखाती है। सो ये जो 2-3 पॉइंट बोले, आप ये देख सकते हो कि आपका कोई व्यक्ति कितने टाइम पे ऑक्यूपाइड है और कितने टाइम ऑक्यूपाइड नहीं है, जैसा कि उन्होंने शेयर किया। उसके अलावा आपको स्पेशल डेज पे अपने आप पर्सनलाइज ऑफर जा सकते हैं। कोई लोग जो पर्टिकुलर दिन से नहीं आ रहे हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, डेटा आपको ऑटोमेटिकली दिखा सकता है, यू जस्ट नीड टू फीड इट वंस। ऑल्सो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आपकी गेस्ट जो 3 साल से है, किस फेस्टिवल पे आके वो पैसा खर्च करती है, तो अब कब ऑफर जाएगा। ऑल्सो ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, आवर ऑन आवर, आप ये देख सकते हो कि हाउ ईच वन ऑफ दीज सेगमेंट इज परफॉर्मिंग। ऑल्सो कंजप्शन, अगर आप प्रॉपरली इनपुट दे रहे हो तो आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। ये एक एस्पेक्ट है। ब्रीफली मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज आप दोनों काफ़ी बोल चुके हैं इसके बारे में। और जो गेस्ट रिलेशनशिप और उसका एक्सपीरियंस की बात है, जब आप अपनी डेस्क टीम को, टेक्निकल टीम को, एक साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़ों से मुक्त कर देते हो तो उनका एक ही काम बचता है। हालांकि डायरेक्टली टेक्नोलॉजी हेल्प तो कर ही रही है आपको कि उसकी चॉइसेस क्या हैं, लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, टाइमिंग्स क्या है, कब वो आना चाहती है, नहीं आना चाहती है। बट साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यह है कि आपके गेस्ट को सर्व करने के लिए आपको उसको जानना ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को आप जानते नहीं हो, आप उसको सर्व नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते। और एज टाइम इज पासिंग बाय, वो एक इन्फॉर्मेशन बार बार देना पसंद नहीं करती है। तो जब वो काम किसी और ने कर लिया है, आप जस्ट एंजॉय द मोमेंट and do the service in a good manner and enjoy the time over there. That's how it is. Right. Kapil, क्योंकि आपने टीम का भी जिक्र किया, I would like to ask the next question to you and then we take it forward. What are the challenges that you are facing in the salon when it comes to putting technology, data management and use of CRM to actual use with your employees?
तो बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शंस की मैं बात करता हूँ अगेन, जो मैंने फेस किए हैं और जो सोसाइटी भी फेस करेगी। सबसे पहली तो बात डेटा मैनेजमेंट की है, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी की है, और इसके दो एस्पेक्ट हैं कि इंटरनल एस्पेक्ट और एक्सटर्नल एस्पेक्ट। तो पहला एस्पेक्ट ये है जो अभी हमने फील किया, और जब भी मैं बात करता हूँ एसएमसी में तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी कोई अचीवमेंट के बारे में मैं बताऊँ या हमारे फेलियर के बारे में बताऊँ। कभी भी ये गिल्ट से या ईगो से मैं ऑपरेट नहीं होता हूँ। आइडिया इज दिस कि फेलो इंडस्ट्री सैलून ओनर्स could relate and do something about it, or could learn something out of it. तो हमारे कुछ टीम मेंबर थे जिन्होंने एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, और जब वो गए तो डेटा भी साथ में लेके गए। ऑल्सो नॉट ओनली डेटा, हमारी भी लीनियंसी थी कि कुछ वीक्स तक एक्सेस भी हमारे सिस्टम को उनको था। तो इट मीन्स आपने पूरा बिजनेस प्लेटर पे उठा के उनको दिया। तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है। अगर आप डेटा को करेंसी से ज़्यादा ट्रीट नहीं करते हो, आपका कैश 50,000 रुपये इधर उधर हो जाता है, आप हिल जाते हो, बट आपका डेटा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच वी आर स्टिल लर्निंग एंड वी लर्न द हार्ड वे। एंड आई वॉज ओके, बिकॉज कोई भी टीम मेंबर आता जाता है, उसकी ग्रोथ का सवाल है, दैट इज ओके, but I was not okay my data going and getting shared, and which can happen to the other player also. तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरा थ्रेट है जो अभी हम एज इंडियन सोसाइटी फील नहीं कर रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड इसके बारे में बहुत जागरूक है, और यहाँ हमें वो एग्जांपल देखने शुरू हो गए हैं जहाँ ये डेटा अगर मैं सिक्योर नहीं कर पाता हूँ और किसी व्यक्ति का पर्सनल डेटा मार्केट में जाता है, ultimately it is my responsibility. So I think the legal implication come very soon, where not because of you want to save your business and your data, you need to secure her confidentiality also. So that is the biggest threat which I am looking at it. And अगर एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें, बट आई थिंक वो अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां उसके ऊपर काम कर रही है, वो है कि हम टेक्नोलॉजी को लेके जब कॉस्ट की बात आती है, एंड व्हेन आई से अस, आई इंक्लूड मी, माई सेल्फ, माई ऑर्गेनाइजेशन, माई टीम एंड द होल इंडस्ट्री, हम पैसे की बात सोचने लग जाते हैं कि यार ये इम्प्लीमेंट करूंगा तो कॉस्ट जाएगा, इसकी क्या ज़रूरत है। फिर है रेजिस्टेंस टू टेक्नोलॉजी, फाउंडर्स एंड टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम का तो ये सीन है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज में लेते हैं, विजुअल्स उनको पसंद आते हैं, बट काइंड ऑफ नंबर्स जो होते हैं ना, वो उनको रिपल्स करते हैं। सो आई थिंक एज सैलून ओनर्स, एज टेक्नोलॉजी कंपनी, वेयर वी आर वर्किंग, कि उनको विजुअल फॉर्म में चीज़ें दिखाएं वेयर दे एंजॉय इट मोर। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। एक चीज़ खाली और बोलना चाहूँगा कि जब ये कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात हो गई, अगर ऑनर ये चीज ले भी लेता है कि नहीं मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, सॉफ्टवेयर कंपनियां जो है ना, वो अभी भी नहीं समझ पा रही हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है बहुत फास्ट, बट ये स्पीड अभी भी स्लो है, और हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, और वो आपस में इंटीग्रेट नहीं होते। तो बहुत कंपनियां रिजिड हैं, दे आर नॉट थिंकिंग ओपनली। मतलब वो अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने की सोच रही हैं, बट दे आर नॉट थिंकिंग फॉर इंडस्ट्री की उसका पेन प्रॉब्लम और इंटीग्रेशन कैसे स्मूथ हो विद older technologies, older data and newer data. So I think these are three important points which we need to take care of. Right. Thank you, Kapil, for that explicit answer. Sachin sir, do you agree with him? Is there a challenge in integrating technology? मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी शुड बी इनविजिबल। मुझे जवाब चाहिए कि अगले हफ्ते मैं इतने बिजनेस के लिए क्या ऑफर रखूं, फिर आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, कौन सा डेटा कहाँ से लाके कैसे उसको मसाज करते हो डेटा को, नॉट इंटरेस्टेड। और मेरे हिसाब से जो ये ट्रेंड है, उससे डेटा की प्राइवेसी और सेफ्टी पे भी बहुत असर पड़ेगा।
क्योंकि हमको किसी को अभी डेटा शेयर करने की जरूरत है ही नहीं. यू आस्क द सिस्टम फॉर आंसर्स, द सिस्टम विल टेल यू द आंसर. दैट्स ऑल. यू डोंट नीड टू नो द फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है. वो अपने आप से कैलकुलेट करके, आप जैसे इंसान से बात करते हो वैसे उसको पूछो लिख करके, वो आपको जवाब देता जाएगा. जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे वैसे वैसे यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, लाइक यू सेड, उसको कैसे प्रॉम्प्ट्स करने चाहिए और क्या होना चाहिए. बट यस, डेटा इज, जैसे कहते हैं ना, डेटा इज द न्यू गोल्ड. सो यू हैव टू बी डेफिनेटली be very clear about that. But according to you, what are the challenges of the salon industry adopting newer technology? सलोन इंडस्ट्री का चैलेंज नहीं, पूरी दुनिया का ये चैलेंज है कि जो चीजें नहीं होती है उससे हमको एक डर सा लगता है. अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, सारी दुनिया में बोलबाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज बोल के गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो नौकरियां जाएंगी. हाँ, कोई गायक कह रहा है कि मेरे जैसे कोई दूसरा गाएगा, एक्टर कह रहे हैं कि मैं घर पे बैठा हूं, कोई एक्टिंग करेगा. लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा. आज जो आपके खेत में ट्रैक्टर चल रहा है, लोग कहते हैं कि 10 HP का ट्रैक्टर है. व्हाट इज HP? हॉर्स पावर, मतलब 10 घोड़ों की ताकत रखने वाला मशीन, राइट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जो आप डेटा देख करके उसको समझ सकते हो और उससे नतीजे ले सकते हो, वैसे क्षमता रखने वाला कंप्यूटर. ये पहली बार नहीं हो रहा है. खेतों में हल चलता था, उसके बाद टीलर आया, टेक्नोलॉजी. हम चलते थे, उसी को फास्ट कर दीजिए, व्हील आ गया, गाड़ी आ गई, टेक्नोलॉजी. लेकिन हम सब यहाँ बैठते हैं ना, इससे कुछ अगर थोड़े जॉब्स गए तो उससे भी ज्यादा जॉब्स आए, तो किसी भी मॉडर्निटी की तरफ हम जाएंगे. सो दिस इज बाउंड टू हैपन. लेकिन सबसे बड़ा टेंशन ये है कि टेक्नोलॉजी, इन्होंने कहा ना कि स्टाइलिस्ट को आप नंबर्स दिखाओ तो बोलते नहीं, लेकिन उनको विजुअल्स दिखाओ तो उनको समझ आता है. लेकिन अभी टेक्नोलॉजी ये भी करेगा कि आपको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में आप, तो ये जो मैंने कहा ना लिख के बताइए, उसको भी 26 भाषाएं आती है. कर लीजिए बात. जैसे आपके क्रिकेट की कमेंट्री आजकल 16 भाषाओं में होती है, वैसे ही आप कंप्यूटर से भी किसी भी भाषा में बात कर सकते हो. सो यू डोंट हैव टू टेक द effort. Absolutely. Yesterday, in one of the sessions, a speaker did mention that it's not AI that will take away jobs. It's people who don't use AI, they might lose their Not job. don't use AI. People who get worried, Yeah. right? अभी लोग होते हैं ना, पानी बचपन में एक बार किसी ने स्विमिंग पूल में धक्का मार दिया था तो नाक में पानी गया, डर गया. उसके बाद शवर में भी ऐसे ऐसे करके नहाते हैं. बट वो तब था, राइट? इफ यू थिंक, then you don't need to be scared about anything. Yeah. You have to just go with the flow and learn it. So jobs won't go, your attitude has to go and change. Right. Thank you, sir. Mukul, what are the challenges that you are facing in your salon when it comes to adoption of technology? कोई भी नया सॉफ्टवेयर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो एडॉप्शन का तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, बट वो प्रॉपर राइट चैनल ऑफ ट्रेनिंग से वी कैन ओवरकम विद दैट. नाउ द सेकेंड स्टेज इज लाइक वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट डेटा ड्रिवन results we wanted from it. We want software should give each and everything the data in a proper way. But वो data तब आएगा when you will implement the data in a right way. Customer का number सही तरीके से डालो, first name last name डालो, then take their email IDs, mobile number तो हो गया ही. Then there are a lot of other things, client preference, client consultation form also can be implemented with the digital. So these are the like pain points, like we keep on doing it. कभी कभार है ना, हमारे मैनेजर्स फ्रंट डेस्क वो मिस कर देते हैं, कंसल्टेशन फॉर्म नहीं भरा. बट कंसल्टेशन फॉर्म अगर भरते हैं, सो वी कैन ऑल्सो पुल अप अ न्यू डेटा फ्रॉम द कंसल्टेशन फॉर्म कि कितने कस्टमर्स मेरे ऑयली स्किन के हैं. सो दीज आर. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बोलूं,
क्योंकि मैं भी सैलून में काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि आपके फ्रंट वाले लोग, जैसे इन्होंने कहा कि क्लाइंट का फर्स्ट नेम ही लिखेंगे, मुकुल लिखेंगे, फिर आप ढूंढते रहो 6 मुकुल में से ये कौन सा है, अनलेस द नंबर इज देयर, राइट। लेकिन इस प्रॉब्लम को सबसे बढ़िया सॉल्व किसने किया है पता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने हम सबको सिखा दिया है। आज अपनी तरफ से आप अपना यू कैन डू योर ट्रांजैक्शंस योरसेल्फ। जब इंसान खुद का नाम लिखेगा तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा, खुद का नंबर लिखेगा तो नहीं करेगा। तो जैसे मैं कहता हूं कि मैं हमारे कस्टमर्स को कहता हूं कि आप लॉयल्टी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कीजिए, आपके सभी ट्रांजैक्शन का बिल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कस्टमर कहेगा मेरे रिवॉर्ड पॉइंट किधर है, राइट। सो जितना काम आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा काम हमको खुद दिया है, राइट। आप खुद बहुत सारी चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो और वो खुद अपने आप से हो जाता है। जितनी डिटेल आप कस्टमर को इसमें कोऑप्ट करेंगे, राइट। अभी जैसे ऐप है, क्यों सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ही कस्टमर कॉल करे? रात को 11 बजे उनको याद आ सकता है कि कल सुबह मुझे जाना है। तो अगर आपका वेब स्टोर हो या आपका मोबाइल ऐप हो, उसके अंदर वो कल सुबह का अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगा, पता चलेगा कौन है। ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि लास्ट टाइम मैं किस स्टाइलिस्ट के पास गया था। उधर एक ऑप्शन है, जिसने गए बार सर्विस किया वही क्लिक करो, हो गया। जितनी सहूलियत आप दोगे उतना सिंपल हो जाएगा। और आप सो रहे हो और आपकी अपॉइंटमेंट बुक बढ़ती जा रही है। Very valid, sir. Kapil, before we wind up the session, I would want you guys to tell our audience, like, have takeaways for them on some tips that they can use with vis-a-vis technology. So I guess डेटा और टेक्नोलॉजी आप तब यूज़ में ले पाओगे जब आप क्लियर हो कि आप अपने बिजनेस से क्या चाहते हो। तो आप टॉप 3 प्रायोरिटीज़ या टॉप 5 प्रायोरिटीज़ अपनी लिखिए जो वाकई आप बिजनेस में करना चाहते हैं, और उसको आप देखिए कि कंप्लीटली वो सिस्टम टेक्नोलॉजी डेटा ड्रिवन हो सकता है क्या। मेरी प्रोबेबिलिटी है, जो मैं असेस कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि 100% आप ऐसा कर पाओगे। तो आई थिंक यहाँ डेटा और टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और हम उसके बारे में जानते हैं, बट जानना काफ़ी नहीं है। हम उसको इम्प्लीमेंट कम करते हैं या नहीं करते हैं, और उसकी वजह यह है कि शायद हमारी वांट या तो क्लियर नहीं है या वो वांट रियल नहीं है। तो मान लीजिए आपकी वांट है कि आपके गेस्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और ये रियल वांट है, तो आपको आपका सिस्टम मदद करेगा। आपकी वांट ये क्लियर कि भाई मुझे तो प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब है, और जैसे प्रॉफिटेबिलिटी ये 3 चीज़ों से आएगी मेरी, कि मेरे लोग कि मैं परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन करूं, मेरे सैलून पे कलेक्शन बढ़े और मेरी कॉस्ट जो है वो कम रहे। ये 3 आपकी वांट है। तो आप देखो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगी। और जब भी आप लिथार्जिक हो, सुस्त हो, तो आप देखो कि आप क्या चाहते हो और ये वाकई आपको सर्व कर रहा है। तो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ वेल, योर वांट्स वेल। technology providers are there and they are ready to help, और अभी तो सब चीज का solution है। You get clear what you really want and help technology to use it and really use it. Thank you, Kapil. Sachin sir, what tips would you like to? मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने दिमाग में सोचिए कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है आपका वो बहुत महंगा है। अभी सवाल ये है कि आप इसकी कंपैरिजन किस चीज से कर रहे हो। जो आप आज कर रहे हो उससे कर रहे हो, जो आपको कल करना है उसके बारे में सोच रहे हो। सेकंड, क्या आपको टेक्नोलॉजी से सिर्फ आपका दुकान चलाना है या आपको उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना आपको बिजनेस बढ़ाना है, राइट। अभी जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट हम किसको कहते हैं? इन्वेस्टमेंट हम उसको कहते हैं कि ये करने के बाद मेरा बिजनेस, मेरा मुनाफा इतना गुना बढ़ना चाहिए। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को कॉस्ट के तरीके देखते हो
तो कभी भी आपका जवाब ना होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टमेंट के तरीके देखते हो तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आज के समय में नहीं हो सकता हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एक पर्सनल टच वाली इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री में अगर आप टच और टेक के दो चैनल लेके चले तो टेक्नोलॉजी वो सब चीज कर देगा जिससे कि आप अपना टच का जो बिजनेस है, पर्सनल टच का बिजनेस है, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे उसको करने के लिए। बाकी सब चीजें टेक्नोलॉजी आपके लिए हैंडल कर लेगा और आप उसके कंट्रोल में रहेंगे। So that's what I would say. Thank you, sir. Mukul. सो सबसे पहले काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सवाल ही क्या है। लोगों को सवाल ही नहीं पता होता है। वी शुड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन लाइक विद इन अस कि हमें चाहिए क्या बिजनेस से, व्हाट एग्जैक्टली वी वांटेड, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट इनटू द डार्क साइड कि हमें एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं होता है कि करना क्या है। तो डेटा होने के बाद भी, रिजल्ट होने के बाद भी वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या है। डेटा तभी आएगा, रिजल्ट्स तब आएंगे जब हमें सवाल पता होंगे। तो चैट जीपीटी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर हमें जो चीज़ चाहिए हम चैट जीपीटी को पूछते हैं तो हम लिखते हैं ना, हमने सोचा हुआ रहता है कि ये सवाल है मेरा। तो कोई टेक्नोलॉजी तो कोई भी अडॉप्ट कर लो, बड़ी छोटा सॉफ्टवेयर बड़ा सॉफ्टवेयर, दैट डजंट मैटर मच। जहाँ जहाँ तुम्हारी सोच बढ़ती जाएगी तुम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लोगे। सो स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन विद इन आवरसेल्फ कि हाउ वी वांट टू ड्राइव दिस। तो जैसे हम लोगों को कॉन्क्रीट चीज़ें मालूम पड़ेगी हम वैसे वैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते जाएंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज वंस वी अडॉप्ट एनी टेक्नोलॉजी वी नीड टू पुट द राइट डेटा। अगर मुझे इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है, इन्वेंट्री को प्रॉपर ट्रैक करना है तो मेरे को कंजम्पशन एंट्री डालनी ज़रूरी है। तो मैं कंजम्पशन एंट्री डालूंगा नहीं और इन्वेंट्री ट्रैक नहीं होगी, देन यू विल ब्लेम द टेक्नोलॉजी। सो डेटा तभी अच्छे से आएगा जब हम अच्छे से इनपुट डालेंगे। So yeah, these are the two. Yeah, exactly. So 2 major tips here. Do you have a dedicated person who handles all your data? We have a team, but majorly we only have to look it. We cannot be dependent on others unless and until you will not see your own data. दिमाग नहीं चलेगा. Okay, so it is important to do like periodical checks and analysis Yes, of yes, sir. the data you have. Okay. I think this is a very valid question. बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने ये सॉफ्टवेयर ले लिया ना, अब अपने आप से जादू होगा, राइट? एंड दिल से मैं बहुत टाइम से इसको देख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने आप से कुछ नहीं करने वाला। सो यू हैव टेक्नोलॉजी, आपको अपनी टीम में से किसी को असाइन करना पड़ेगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को समझ के इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी सिस्टम में, और जितने बढ़िया तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इफ ही वांट्स दिस जैकेट टू लुक गुड, ही हैज टू मेंटेन इट। अपने आप से वो मेंटेन नहीं होता। एग्जैक्टली द सेम वे, इफ यू वांट द सॉफ्टवेयर, इफ यू वांट टेक्नोलॉजी टू वर्क फॉर यू, मैं इतना ही कह सकता हूं आपको कि दैट इज प्रोबेबली द वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट्स जो आप अपने बिजनेस में कर सकते हो। Right. Before we wind up, Kapil, one quick question for you. Mukul has already spoken about the right input that has to go in for your technology, for your data to be sound. So, do you provide any kind of training to your staff when it comes to data handling and data inputs? Yes, we do. And even after those trainings, constant monitoring and upgradation reorientation is required. तो यस, हम ट्रेनिंग करते हैं, अपग्रेड करते हैं और रीओरिएंट करते हैं। All right. Thank you so much. And now I would like to throw the floor open for questions. Yes. Can we have a mic here? और ये जो रीओरिएंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एक हम इंडियंस, हमको जुगाड़ आता है हर चीज में। तो आप बोलो क्लाइंट का ईमेल एड्रेस आप लिख लो, आपको बहुत सारी ईमेल एड्रेस मिलेंगे abc@gmail.com। Yes, ma'am. You can ask a question. A very good afternoon to you. I am Vidya Nayak. I am coming all the way from Karnataka to attend this session. This is my first session. I am very, very happy to see you all.
My question is, I have a tier 2, tier 3 kind of a salon. And by adapting all this, whenever I get a chance to take a software, there are a lot of things they pitch in. Like these things we have, these things we have, like lot of things are there in our software. So I don't know what kind of software and features to adopt to run my salon in a smoother way. So this is the challenge what we face. And when it comes to the competitor, they are also using the same software or other software. How do we stand out, and what feature we have to take in our salon in the technology feature that we stand out, and we reach our customer in a better way than our competitors. So the population would be like 15 lakhs of city population. What kind of software we have to take in our salon is the question. City पे या there is no requirement of any city level or population. I will tell you. There are 10 photographers and all the photographers give them the same camera. Will you get exactly same picture? No. What kind of picture you will get? The kind that the photographer wants to click. You give the same vegetables to 10 cooks. You will not like what they make equally. Eventually, you are the most important person in that whole equation. First thing you have to decide is to say, currently from what I am doing, which are the things that I want to correct. Okay? So when we talk to any new customer or new prospect, what we first find out is, what are you using currently? What are you dissatisfied about? What are the things you want to change? That is point one we'll understand. Second point we understand is, we today have 30,000 customers across the world. So we say, okay, you are this kind of city and these many locations. So we will look up our data and say, for people like you in our system, these are the 4 things that they should do first. We will recommend to you. But then you have to take the call to be able to do that, and you have to implement it. Does that help you? In fact, if you're interested, I do have a couple of my team members sitting here. For whatever it's worth, if you want, chat with them for a few minutes and understand. It might help, it might not, I don't know. But it's for you to do. Like I said, Mukul told you, the most important things are the questions you ask. Those will help decide. सॉफ्टवेयर आपके सोच से छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसे सिलेक्ट करो. Also, जो आपकी 2 query हैं, so your first question was, what features are good for you. So as I told you earlier, all of you, in fact, you need to decide for yourself what do you want from your business and how technology can help. So that will give you clarity, and then search for it. That's my 2 cents. And of course, software companies, these people are very good, sharp and supportive, and they will also offer you what they can, bring on the table for you. That's one thing. Second thing is, you ask, everyone is using the same thing. It is not about, as he mentioned, the car you are driving, but where do you want to reach? How do you want to drive? Which destination, which path? It is totally up to you. And technology, in terms of your mobile, you are not using even 5% of that. So it is not about the technology. It is about your hunger and your need to use it. Even if you use it, and we were just discussing and he was mentioning it, any technology, even if you're using it, let's say 5% right now, if you use it up to 10% or 8%, you are actually way ahead with most of the people. So it is totally up to you, the way you want to drive it. Thank you, Kapil. There's a question right behind. Can we have the mic there, please? Okay, Mukul is telling you, if you want to know which are the first things you should adopt, you can chat with him, he'll help you. Later on, I can tell you. Can you hear me? Yeah. Hi, I'm Thomas. So I'm the founder of Flect. So we're a new technology provider in the market. So we actually have a solution which helps analyze the scalp, shows your dandruff, shows blackhead, whitehead. So you're ideally one of our target, audiences. So we just wanted to know, what are the challenges, as you mentioned earlier, right, in terms of AI and all of that, what are the challenges
for a salon to adopt such technology? Would love to hear from you. Right now, we have around 100 salons, primarily in Bangalore, and it's been receiving well. But would love to hear from you. What sort of challenges would you be facing if you want to adopt such a new technology in the market? Okay, so I'll go first. One thing which we missed, all of us, what is trending in terms of salon uses technology, consultation with proper diagnostic tools. And I think camera consultations and scalp or skin diagnosis helps. So video presentation, yes, a lot of product companies are providing. So it is very relevant. The problem which happens is the quality, the integration with the system, and the input and solution which should come with multiple product companies. So I think these are two answers which I can offer right now. Yeah, I don't think there is any challenge. आप लेके आओ ले लेंगे. Yes. You got a deal, huh? Yeah, I think the biggest thing, no, I'm thinking of my salon days. I will tell you, in a similar conference, this was in the Middle East. There were some 2,500 delegates from 7 continents and some 23 countries. And उन्होंने एक data present किया. They said, if you ask stylists, they will tell you 92% of stylists say कि हमने consultation किया. But if you ask customers, only 7% of customers will say कि मेरा consultation हुआ. So eventually आपके पास बहुत सारा equipment है, system है, software है. Question is, you feel the need to use that. Camera consultations have been around for very long time, right? Today, I know that medical spas में, there is an app called Photo Manager. We also do something like that, where because in a med spa it is very important to keep before after photographs, वहाँ पर वो इस्तेमाल होता है. But can a salon use it? Of course, it can be so beautifully used, but you need to want to use it. So your biggest thing, the customer will tell you, I'll buy the software. मेरे लोगों से करा के दिखा. That's when I'll pay you. We have one more question right in front. If can we have the mic there, please? Yeah, please. आवाज नहीं. So hi, a very good afternoon, everybody. मेरा क्वेश्चन नहीं है. It's just overall हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन लोगों के लिए एक मैसेज है. See, this PB is happening, right? Outside this conference, there are thousands of people. And inside this conference, we are just, I think, 50 to 100. Okay. So first thing is we are different. Second thing is we all are here, and I'm sure that we all are here because we want to do something big. Let's say if one of you are a salon owner, you wanted to be a owner of 2 salons, then 3, then 4. So slowly and gradually, we all want to don't work only as an individual. We want to grow, and growth is always with the expansion, and expansion is always with the adding number of people. Okay. So if you will implement the data technology in your system, आपके 100 salon हो जाएंगे तो भी आपका language एक रहेगा. So any human intervention will not influence your vision. It means what you want, that same thing if you want to be delivered, like it's like I have seen it in the brands. Same type of a setup, same type of a communication. आप good morning कैसे बोलोगे उसके भी तरीके होते हैं. So Ma'am, data, can you quickly come to the point? Yeah. So my point is, यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे ये भी लगा कि why data? How data से ज़्यादा why? So my thing is, first and foremost, everybody should understand why. How तो कर लोगे. जो सवाल है पूछो. दिमाग जिसका जवाब नहीं वो पूछ लेना चाहिए. That is only is your question. So without any kind of a confusion, try to bring data in your life in any manner. That's what is my message. तो उसके लिए सिंपल जो सलोन वाले हैं उनको सॉफ्टवेयर डेफिनेटली रखना चाहिए फॉर द बिलिंग एंड ऑल दैट बिकॉज वी आर अ सलोन फिटिनिटी एंड फॉर इवन एवरीथिंग. Thank you. That's the only point. For summing Thank up you. that. You guys also agree to what she's saying.
why data is more important than understanding how to use the data. Yeah, which is why they were saying ask the right questions. Yes, Which is why absolutely. we were saying it depends on what you want to do, right? Absolutely. And I would like to conclude this session with what Kapil had said, that be real with your expectations and be clear about what you want, and then you can make the most of data. So with that, we bring this session to an end. Thank you so much. And can we have a round of applause for our speakers here? They have given us such in-depth answers. I would like to present them with a memento. So Mukul, can you please step forward? I request all my speakers to head to the VIP lounge where my team will take care of you. And with that, we break for lunch. So I request you all to be back here for our post-lunch session sharp at 2:30. We'd like to start the session on time so that we wind up all the SMC panels by 5 and then head for the Snap India Awards and the Modern Barber Awards. I would like to invite you all to come and attend the awards, which will happen at the hair stage at the back of the show. So please be on time at 2:30 when we start with our next panel. Thank you so much. Enjoy your lunch.